Hello, friends and my viewers. How are you all? Now, today, actually, in the Economic Times, I had read a very nice column in the section "The Speaking Tree," जहाँ पे बहुत अच्छे, moral कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शंस होते हैं जो लाइफ में काफ़ी काम आते हैं. सो उसका जो लाइन है, हेडलाइन है, दैट इज़ सेइंग थैंक्स इज़ हेल्दी. यानी कि आप थैंक यू बोलते हैं तो हेल्दी है. एंड वो हेल्दी कैसे है, इसमें भी एक साइंटिफिक बैकग्राउंड है. नाउ इसमें ऐसा कहा गया है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिसर्च reports, positive emotions like love and gratitude actually enhance the immune system, which shields the body against attack from disease and illness. Our attitude and our psychological condition have a direct bearing on our immune system. So आप कैसा सोचते हो, आपकी psychological condition कैसी है, सब आपके immune system को affect करेगी, and that is also going to affect your health. Now, positive feelings of gratitude and joy release endorphins into the bloodstream, यानी happy hormones. जितना आप positive सोचेंगे, humble रहेंगे, you will have gratitude. That will actually release endorphins into the bloodstream, which are the body's natural pain killers. यानी कि कोई पेन किलर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई. वो एंडोर्फिन्स जब रिलीज़ होंगी तो अपने आप आपका सारा पेन चला जाएगा. तो आपने देखा है कभी कभी हम पूरा दिन भी नहीं थकते हैं. ठीक है, जैसे मैरिज होती है घर में या कुछ अच्छा सा ओकेजन होता है तो रात भर बातें भी करते हैं, सुबह काम भी कर लेते हैं, जो भी है ना, और तैयारियां कर लेंगे. इतने खुश होते हैं कि पता ही नहीं चलता सोए जगे क्या हुआ. दैट इज़ बिकॉज एंडोर्फिन्स रिलीज़ हो रहे हैं जो आपको दर्द महसूस ही नहीं होने दे रहे. They stimulate dilation of the blood vessels and relax the cardiac muscles, strengthening the body's capacity to resist disease and aid recovery. On the other hand, negative emotions are known to dump high levels of adrenaline in the blood. Adrenaline जो है ना, वो एक तरीके से फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड वो तब होती है रिलीज़ जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जब आप पैनिक में होते हैं, डरे होते हैं या घबराए होते हैं या ओवर एक्साइटेड भी होते हैं. तो बट वो बॉडी के लिए हार्मफुल है. तो नेगेटिव इमोशंस में भी वो रिलीज़ होता है. This constricts the flow of blood to the heart. It slows down the movement of white blood cells, which fight disease and strengthen our immune system. तो basically white blood cells के movement को भी affect करेगा, slow down कर देगा, blood vessels constrict करके high blood pressure करेगा. तो एक तरीके से वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है. इन अदर वर्ड्स, gratitude releases happy hormones into our system, helping us to live longer and healthier lives. Gratitude may not cure you of cancer, but it will definitely make you feel better. यानी आपको जितने दिन दिए हैं हो सकता है उससे ज़्यादा दिन आप जिए. ठीक है, तो एक होता है ना, जैसे अपना हर दिन ऐसे जियो कि आखिरी हो. एक गाना है, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. तो ये चीज़ जो है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है. अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे आखिरी हो. बस ये सोचेंगे तो खुशी रहेंगे कि कल का कुछ पता नहीं है, तो आज तो खुशी रहना है. खुश रहो, दूसरों के लिए भी खुश रहो. खुद के लिए तो रहते हैं, दूसरों के लिए भी रहो. How does Thanksgiving heal and strengthen you? When you focus on the feeling called gratitude, you start thinking about all that is good and positive in your life. Since all that is good and positive emanates from God, the person who practices Thanksgiving therapy allows powerful positive forces in the world to flow into him and draw strength and healing therefrom. It is in fact akin to being concerned with a powerful spiritual dynamo. So, have positive thoughts. ठीक है, आप ग्रैटिट्यूड रखिए, हम्बल रहिए. कुछ भी होता है उसमें ऐसा सोचिए मेरे भले के लिए हो रहा होगा, या सामने वाले का कोई प्रॉब्लम होगा इसलिए शायद वो बिहेव कर रहा है. डोंट प्ले अ विक्टिम काइंड ऑफ बिहेवियर. ठीक है, हरदम ये नहीं सोचो मैं ही क्यों, मेरे साथ क्यों. विक्टिम जब तक बने रहेंगे ना, आप खुश कभी नहीं रहेंगे. सो जस्ट plain gratitude, plain humbleness, and sometimes let the tornado, storm, hurricane in your life, let it pass on. You be silent, strong खड़े रहो और उसको पास होने दो. उसमें आप ना कुछ कोशिश मत करो डुबकी लगाने की या उससे लड़ने की. कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम कितनी भी कोशिशें कर लें हम उसका सामना नहीं कर सकते. तो आपको पता है कि ये चीज़ जो हो रही है ये मेरे हाथ में नहीं है,
मेरे बस में नहीं है, इसके बेटर है कि मैं वेट करूं अच्छे टाइम का, क्योंकि अच्छा टाइम तो आएगा ही, 101% आएगा. तो लेट मी वेट, लेट मी काम, लेट मी डू समथिंग एल्स विच कैन मेक मी हैप्पी इन दिस सैड मोमेंट ऑल्सो. So have positive emotions, let the happy hormones move in your body, circulate in the body, and keep you always positive, filled with gratitude and humbleness. Take care. Thank you. Bye.